इस कोविड महामारी में बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अब हम नहीं तो अपने जजमान में जा सकते हैं, नहीं उनके घर के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसी वजह से हम अपने घरों में बैठे हैं। लॉकडाउन के हिसाब से बिल्कुल नहीं बाहर निकलते हैं, तो डर रहे हैं कि उनके घर जाएंगे तो वो क्या कहेंगे कि आप क्यों आए इस कोरोना में, तो वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हमारे को बहुत बड़ी ये दिक्कत आ रही है कि अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा है। सोमवार हुआ तो सुबह को, सुबह हो तो सोमवार हुआ, कदे हुए कदे नहीं हुए, कदे भूखा ही बैठा रहा कदे खाओ। राशन कार्ड पे जो आधार कार्ड बच्चे की बना नहीं हुई है, तो इस हिसाब से कुछ नहीं मिलते। गेहूँ है मिलते थे 15 किलो, वो भी बंद हो चुके हैं। कब से बंद है ये? 6 महीने से। तो आपने इसकी शिकायत करी? शिकायत तो 2-3 बार ठेके पे गए तो वो गए आप आधार कार्ड बनाए। हम बीमार आदमी हैं, कहाँ जाए, लॉकडाउन लगे हुए है, आधार कार्ड तो ऑनलाइन सब बंद हो चुकी है, कहाँ से बनाना आधार कार्ड। Barmer is home to hundreds of folk musicians, most of them Muslim, who have had no work since the lockdown was imposed last year. This is Barmer's Kalakar colony that has a population of somewhere between 800 to 1000 persons. This colony has been into existence since 1984, and people from the Manganyar community, whose main source of livelihood is performing folk art, live here. Since the lockdown last year, however, most of them are out of work. They do not have ration cards, and unlike you and me, who are comfortable with work from home, these people, they are not really comfortable with online events. They do not know how to go about it, and therefore even that avenue is still not available to them. Goma Khan lives in Barmer's Kalakar colony, meaning artist colony. He has been part of a folk troupe for 20 years. He plays dhol and matka. Goma Khan earned rupees 4,000 to 5,000 a month from his performances before the pandemic lockdowns pushed his family into poverty. Goma suffers from kidney and liver ailments and had to be hospitalized for 2 months earlier this year. He couldn't afford to pay his medical bills, so his family reached out to their relatives for loans. Goma is now burdened with a debt of rupees 5 to 6 lakh. उधार लेना पड़ते है, उधार लेके आते हैं। कितना उधार ले चुके होंगे अभी तक आप अब लॉकडाउन तो लॉकडाउन में तो 30-40 हज़ार की ले चुके हैं ये 2 महीने। और जो इलाज में आपके 5-6 लाख खर्चा कहाँ से आया भैया? कुछ 2 लाख रुपये तो भाई ने दी, नहीं लाख कोई गहने थे वो सब अड्डा ने रोक दिए। Goma Khan's wife Leela says their family have never seen days like these. They received a free ration kit being distributed by the district administration in May. That didn't suffice. So she sent word to her maternal house to help the family with rations. ये लॉकडाउन में दुख हुआ इतरो क्या में नहीं हुआ, महीना लोन नहीं, ओलन नहीं, पयू नहीं, दोनों नहीं, ए तरह 3 भी बच्चे बड़े बड़े, एक छोटो छोकरी है, आदमी बीमार है, और बड़े लोन के तो उम्र ही हो चो मैं उन्होंने के आप घरे तो मिलना चाहिए। Goma Khan's family have a modest house of their own in Barmer city, but they still use a chulha to cook food because they can't afford an LPG connection. Goma Khan complains that government authorities haven't bothered checking on families like his during the pandemic. कुछ नहीं है, अगे राशन मिलता तो राशन ही हमें बंद कर दिया, कहीं नहीं मिले। और हमें एक बैठा भगवान माथे, भगवान भरोसे, भगवान दे तो खान बैठा बुझ के। सरकार ने तो मदद करना चाहा है, जो सरकार करती भी नहीं है। जिन जजमानों के यहाँ आप मतलब इतने सालों से जा रहे हैं कार्यक्रम में, तो अभी जो लॉकडाउन पड़ा 2 साल का, किसी ने पूछा आपका हालचाल कॉल करके? किसी ने भी नहीं पूछा। Fakira Khan is an award-winning folk musician. He comes from a family of folk singers in Barmer and is credited with helping popularize Rajasthani folk music through his performances in the US, Canada, and China, among other countries. His last foreign performance was in Thailand in 2019, before the pandemic disrupted travel. इस लॉकडाउन में हमारे को बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि हमारी पारंपरिक
जो जाती है ये गाना बजाना का धंधा करती है अपने जजमानों में। जजमाने के वहाँ हर शुभ कार्य में जाकर सुबह जाती है और शाम को अपना जो लेके आती है उसी से गुजारा चला रहा है। और कुछ लोग हैं जो बाहर फॉरेन जाते थे, कलाकार हैं, तो वो भी उनका भी 1.5 साल से बिल्कुल काम बंद हो गया है। ऐसी बात है कि 12 महीने में हम 4-5 बार तो आउट ऑफ इंडिया जाते थे, ठीक है। उसके बाद में इंडिया में जहाँ बड़े फेस्टिवल होते थे, जैसे लोक कला मंडल है, एकेडमी है, टूरिज्म में है, और कहीं कार्यक्रम हो गया, किसी की शादी होगी, इवेंट का कार्यक्रम है, तो उसमें हमारे को पैसे मिलते थे, तो वो बिल्कुल बंद हो गए। और दूसरे जो कलाकार नहीं थे, जो दूसरे कलाकार तो बिल्कुल गिने चुने हैं। बाड़मेर जैसलमेर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार आप गिन लो तो सिर्फ 500 या 700 लोग होंगे कलाकार, और वही जाते वही आते। लेकिन दूसरे जो पीछे हमारे करीबन 70% जो कलाकार है, वो उनका गाना बजाना, अपने जजमान में जाना, गा बजा कर लाना खाना, यही काम है। और वो बिल्कुल बंद हो गया। अब वो कहाँ से, कोई नहीं, उनके पास खेती है नहीं, उसके पास कोई साइड कोई काम है। बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में भी वो पिछड़ा हुआ है। The pandemic has left Fakira Khan shattered. He has lost at least 15 fellow artists to COVID. He now wants the state government to provide a relief package to the 7 tribal communities associated with performing arts in Rajasthan. बीपीएल को बिल्कुल फ्री दे रही है, तो बीपीएल में हमारी समाज जो मिरासी मांगनियार कौम है वो बीपीएल में नहीं जुड़ी हुई है अभी तक, बिल्कुल पीछे है। उसमें से कुछ लोग, अब जैसे हमारे इस कलाकार कॉलोनी में, बाड़मेर शहर में जितने भी कलाकार समुदाय के जो कलाकार रहते हैं, उनमें से 10% बीपीएल के, तो 10% को मिल जाता है और दूसरों को बस नहीं मिल रहा है, तो ये भी है। तो इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं, सरकार से भी कहते हैं कि विशेष पैकेज तैयार करें और लोक कलाकारों का सर्वे करके उसमें से मिरासी, मांगनियार, डाढ़ी, लंगा, दमामी, कालबेलिया, भील जाति के जितने भी कलाकार हैं, जो कलाकार समुदाय में आते हैं, उन्हीं लोगों को एक विशेष पैकेज तैयार करके उनको दिया जाए। और राशन दे तो 2, 2.5-3 महीने का राशन दे तो उसका गुजारा हो सकते हैं। लोग देते हैं, कुछ यहाँ दिया भी है। In April last year, the state government launched a scheme for folk artists to send videos of their performances and announced that they would get rupees 2,500 per video if it passes official review. The government ignored the fact that most of the artists have limited access to smartphones and the internet. For them, even earning 2 square meals a day is a big challenge.